This is Rajbir Kaur, lecturer in Electronics and Communication Engineering Department in Beyant College of Engineering and Technology, Gurdaspur, Punjab. I am going to teach you all Electronic Devices and Circuits subject in third semester. So, in this subject, our first chapter is Multi-Stage Amplifiers. So, in this chapter, we are going to study about needs for multi-stage amplifier, gain of multi-stage amplifier, types of multi-stage amplifiers. Before proceeding further, let us remind what is an amplifier. We all know that amplifier is a device, electronic device that increases the voltage, current or power of a signal. What do you understand by increases voltage, current or power of a signal? Means it can be a weak signal. So amplifier is used to increase the strength of this particular signal, that is amplitude of an electrical signal. So in this way we all have reminded that what is an amplifier. Now let us study what is multi-stage amplifier. As its name suggests कि मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी कि एक से ज़्यादा. It can be 2, 3 or number of stages. Multi-stage is simply consisting or involving several stages or several sections, means having at least 2 sections or more than that. So here is a definition of multi-stage amplifier. An amplifier formed by connecting several amplifiers in cascaded arrangement. What do you mean by cascaded arrangement? Cascaded arrangement एक ऐसा arrangement है जिसमें एक सिग्नल या एक स्टेज का आउटपुट इनपुट बन जाता है दूसरी स्टेज का. जैसे यहाँ पे लिखा है such that output of one amplifier becomes the input of other and this output becomes the input to the next stage and so on. तो इसी तरह से एक स्टेज का आउटपुट या एक सेक्शन का आउटपुट जो उसके नेक्स्ट स्टेज होती है, जो सीरीज़ में लगी होती है, उसका इनपुट बन जाता है. एंड सिमिलरली यही प्रोसेस चलता रहता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में. किसके लिए? टू इंक्रीज अ स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर सिग्नल. सो ईच एम्पलीफायर इन दिस configuration means multi-stage configuration is known as a stage. So several stages are connected to form multi-stage amplifiers. So you can revive again that 2 or more amplifiers connected one after another is known as a multi-stage amplifiers. So जो ट्रांजिस्टर सर्किट हम यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर stages के लिए, that a transistor circuit containing more than one stage of amplification is known as a multi-stage transistor amplifier. In multi-stage amplifier, a number of signal amplifiers are connected in cascaded arrangement. We all know that what is a cascaded arrangement. Now to connect this cascaded arrangement या to obtain करनी है जब ये cascaded arrangement हमने, we need a coupling device. हमें एक coupling device की ज़रूरत पड़ती है. Coupling means a component or a device which couples one thing to another. So the purpose of coupling device, this coupling device can be a capacitor, transformer, resistor, anything, any device, electronic device can be a coupling device. So the main purpose, जो main ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है कपलिंग डिवाइस, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र AC आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज. ये है इसका पहला काम, दैट इज़ फर्स्ट वर्क ही डूज. सेकेंड थिंग व्हाट ही डूज, ही या दैट कपलिंग डिवाइस आइसोलेट्स DC सिग्नल, यानी कि आइसोलेट DC कंडीशन फ्रॉम वन स्टेज फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज. ठीक है, जैसे फर्स्ट की DC कंडीशन को ये ब्लॉक कर देगा, आइसोलेट कर देगा दूसरी स्टेज पे जब उसने जाना है. सो इट ओनली अलाउस AC टू पास फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. हियर यू कैन सी
वी हैव अ डायग्राम ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ये एक 3 स्टेज एम्पलीफायर है, हर एक स्टेज में एक ट्रांजिस्टर लगा है, उसके बाद हमारा एक एसोसिएटेड सर्किटरी दैट इज़ अ कपलिंग डिवाइस लगा है, कपलिंग लगी है, उसके बाद वी हैव अ सेकेंड स्टेज, देन अगेन वी हैव अ कपलिंग डिवाइस एंड देन वी हैव अ थर्ड स्टेज, देन वी गेट द आउटपुट। सो इन दिस वे हम लोग नंबर ऑफ स्टेजेस को कास्केडेड अरेंजमेंट में कपलिंग डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं टू ऑब्टेन अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। वाई वी नीड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर? सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि अगर एम्पलीफायर होता है हमारे पास एम्पलीफायर, वाई वी नीड दिस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर? मैनी एप्लीकेशन कैनॉट हैंडल विथ सिंगल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स in order to meet a specification of a given amplification factor, input resistance and output resistance। तो उसका सोल्यूशन उन्होंने क्या निकाला, एक सिंगल एम्पलीफायर्स हमारा मोर पावर या हाई लेवल की पावर को हैंडल नहीं कर सकता है। इन ऑर्डर टू ख़त्म करने के लिए उस प्रॉब्लम को उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, दैट इज़ ए कास्केडेड एम्पलीफायर्स और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। उन्होंने काफ़ी सारे एम्पलीफायर्स को, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स को कनेक्ट कर दिया इन सीरीज वन आफ्टर अनदर, वेयर द आउटपुट ऑफ वन बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर। इन दिस अरेंजमेंट दे फुलफिल्ड और दे ऑब्टेन्ड द कंडीशन कि उन्हें हाई स्टेज सिग्नल या स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इंक्रीज़ कर सके और हमें जो आउटपुट चाहिए वो हम ले सके। सो दिस इज़ डन आइदर, ये या हम करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए ओवरऑल small signal voltage gain or provide an overall voltage gain greater than 1 with a given low output resistance. So this is the need, why this is a solution why we need a multi-stage amplifiers. उसके बाद हमारा एक टर्म आता है voltage gain. What is voltage gain? As we all know that the overall voltage gain of a multi-stage amplifier is a product of voltage gain of individual stages. इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमने स्टेजेस कनेक्ट की है, अगर एक की है, दो की है, एक के बाद 2, 3 या 4 सो ऑन, जितनी भी स्टेजेस की है उन सबका जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो हमारा ओवरऑल गेन बन जाएगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। अगर हम वोल्टेज को dB मीन्स डेसिबल्स में एक्सप्रेस्ड करें तो that gain becomes sum of voltage gain in dB of individual amplifiers. If we convert voltage gain into dB तो हमारा एक रिलेशन आएगा, that is 20 log AV. AV here is voltage gain of a multi-stage amplifier. So हमारा जो मेन मोटिव था मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, टू अचीव अ वेरी हाई वोल्टेज गेन, वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। So this is a multi-stage voltage gain. Here you can see we have a diagram जिसमें हमने number of stages connect की है, that is 1, 2, 3 and 4. AV1 is a first stage, AV2 is the second, AV3 is the third stage, and then AVN. N is the number of stages. It can be goes up to infinity. So the overall voltage gain A of cascaded amplifier is a product of individual voltage gain. तो यहाँ पे आप देख सकते हो AV इज़ ए वोल्टेज गेन विच इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस कनेक्टेड अक्रॉस इट. वी हैव AV1, AV2, AV3 एंड स्टिल AVN. सो इन दिस वे वी ऑब्टेन नंबर ऑफ स्टेजेस कनेक्टेड, वन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस. ठीक है. देन एम्पलीफायर वोल्टेज गेन इज एक्सप्रेस्ड इन dB which is as follows. Average voltage in dB is equals to 20 log. अब उन्होंने क्या किया कि जो मल्टी स्टेज सिस्टम था उसका ओवरऑल वोल्टेज गेन लिया उन्होंने, विच इज़ अगेन अ सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज, दैट इज़ AV dB is equals to AV1 plus AV2 and till AVN. Now we have already studied कि कपलिंग डिवाइस की हमें ज़रूरत होती है जब हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स को बिल्ड करते हैं. So we all know that coupling device is a device which connect output of one stage to the input of next stage. So depending upon the manner in which different amplifier stages are connected, तो उसके आधार पर
हमने कौन सा कपलिंग डिवाइस यूज़ किया है कनेक्ट करने के लिए दो स्टेजों को, जैसे यहाँ पे सामने दिया है एक फर्स्ट स्टेज, आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेज, हियर इज़ ए VIN इनपुट, फर्स्ट स्टेज, देन कपलिंग डिवाइस, देन सेकेंड स्टेज एंड देन अगेन कपलिंग डिवाइस। तो ये कपलिंग डिवाइस हमने कौन सा यूज़ किया है वो देख के डिपेंड करता है कि हमारा एम्पलीफायर कौन सा बनता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, RC कपल्ड एम्पलीफायर, RL कपल्ड एम्पलीफायर, LC कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर एंड डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। सो इस तरह से उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग के हिसाब से हमें टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर समझा दिए। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी 3 मेन बेसिक टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स that are RC, transformer and direct coupled amplifier. So this is a function of coupling device. So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कपलिंग डिवाइस के दो काम होते हैं, फर्स्ट इज टू ट्रांसफ़र ओनली AC आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, और दूसरा काम है उसका टू ब्लॉक द DC कंपोनेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर द 2 फंक्शंस जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं whenever you studied or whenever somebody ask you about multi-stage amplifiers. Now टाइप्स करने से पहले वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मल्टी-स्टेज एम्पलीफायर। और पहला टर्म हमारा है गेन। जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में किया था, गेन क्या है? द गेन इज़ ए रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ एन एम्पलीफायर। रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट होता है आउटपुट, और उसका रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट इज़ ए डिवीजन फॉर्म में। जैसे G इज इक्वल्स टू G इज़ ए गेन हियर, V आउट ओवर VIN। V आउट इज़ ए आउटपुट वोल्टेज, VIN इज़ ए इनपुट वोल्टेज। तो इस डायग्राम में आपने देखो G और A, आप G से भी गेन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो गेन को, इट्स अप टू यू। तो इन्होंने यहाँ पे G से रिप्रेजेंट किया है, आप A से भी कर सकते हो, नो इशू। VIN इज़ ए इनपुट वोल्टेज, जो पहले हमने दे दिया फर्स्ट स्टेज को। उसकी जब हमने फर्स्ट स्टेज को वो VIN इनपुट दे दिया तो हमें गेन मिलता है G1 VIN। अब फर्स्ट स्टेज जो है वो कपल्ड है सेकंड स्टेज को। अब सेकंड स्टेज का वो इनपुट बन गया G1 VIN, इनपुट बन गया सेकंड स्टेज का। अब जब हमें आउटपुट मिला सेकंड स्टेज से तो वो मिला हमें G1 प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई बाय G2 इंटू VIN। तो हमें फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज दोनों का जो कंबाइंड गेन है वो मिल गया। देन कम्स थर्ड स्टेज। अब ये जो G1 G2 VIN था वो इनपुट बन गया थर्ड स्टेज का, और थर्ड स्टेज से हमें आउटपुट मिला G1 G2 G3 VIN। सो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर VIN हमारा इनपुट है तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट गेन जो मिलेंगे डिफरेंट स्टेजेस से वो इस तरह से मिलेंगे, और हमारा जो ओवरऑल गेन होगा वो हो जाएगा रेशियो ऑफ V आउट ओवर VIN। और आप कह सकते हो कि G1 G2 G3 ये सब जो हमारे हैं दीज आर द गेन्स। अब V आउट क्या है? V आउट इट इज़ G1 G2 G3 VIN। VIN कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा G1 G2 G3 विच इज़ अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस गेन। यही हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ ए वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो ओवरऑल वोल्टेज गेन इज़ ए सम ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस गेन, वो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया एक हिसाब से। नेक्स्ट टर्म इज़ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, अब हम जब टाइप्स करेंगे, डिफरेंट टाइप्स करेंगे हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के, तो हर एक का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स हम स्टडी करेंगे साथ साथ में। सो दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता क्या है। फ्रिक्वेंसी इज़ अ एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो जब हम कर्व प्लॉट करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड एम्पलीफायर, वोल्टेज हमारा होगा y एक्सिस पे और x एक्सिस पे हमारी होगी फ्रिक्वेंसी। सो जब हम फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज गेन का कर्व बनाते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं, देन रिजल्ट्स अ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कि हम जब हमें किस फ्रिक्वेंसी पे किस वोल्टेज पे कितनी फ्रिक्वेंसी या किस फ्रिक्वेंसी पे कितना वोल्टेज हमें ऑब्टेन हो रहा है, दैट बिकम्स अ हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। देन द अदर टर्म इज़ बैंडविड्थ। दिस इज़ वेरी कॉमन टर्म टू ऑल द इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कि बैंडविड्थ होता क्या है। बैंडविड्थ इज़ ए रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ओवर विच a gain of a particular amplifier is equals to or greater than
मतलब इक्वल्स तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 70.7 और 0.707, 70.7 से तो ऊपर ही होना चाहिए ऑफ द मैक्सिमम गेन, या उससे ज़्यादा, तो दैट बिकम्स अ बैंडविड्थ। वो रेंज, वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ बैंडविड्थ जिसके ओवर हमें गेन मिले हमारे एम्पलीफायर का। तो यहाँ पे एक आप डायग्राम देखोगे, वी हैव अ फ्रिक्वेंसी इन हर्ट्स एंड एम्पलीफिकेशन वहाँ पे दिया है। तो उन्होंने बैंडविड्थ की एक बैंडविड्थ एक तय कर दी है। दे हैव अ बैंडविड्थ रेंज फ्रॉम 10 हर्ट्स टिल 100। तो उसके बाद उन्होंने मैक्सिमम गेन दिया है, मिड फ्रिक्वेंसी बैंड भी दिया है। मिड बैंड क्या होता है, जो F1 माइनस F2 जो हमारा निकलता है, दैट बिकम्स अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या बैंडविड्थ ऑफ ए पर्टिकुलर सिग्नल एम्पलीफायर। देन कम्स नॉइज़। नॉइज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉइज़ इज़ ए मेजर ऑफ अनवांटेड नॉइज मिक्सड इनटू द आउटपुट। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपना वी नीड अवर एम्पलीफिकेशन एंड टू एम्पलीफाई अ पर्टिकुलर ऑडियो सिग्नल, तो कोई अनवांटेड नॉइज़ बीच में एंटर कर जाती है, दैट बिकम्स अ नॉइज़ और डिस्टॉर्शन, हम इसको डिस्टॉर्शन भी कहते हैं। सो these things we have studied till now from our first chapter। तो टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।